Assalamu alaikum everyone. This is Mavish Sayed and I am live for the very first time from this platform that is Emerge. Those who do not know me, उनके लिए मैं अपना थोड़ा सा introduction दे देती हूँ. I'm a business consultant by profession. I head a women empowerment platform, which is a global network. Then I am a social activist. I work for environment also. And now here I'm talking about this new venture that we have launched recently, that is Emerge. Before I start, I would like to take the co-founder of Emerge with me in this studio. So please welcome Mr. Fahad Qureshi. Hello, Hello, Fahad. hello, Mavish. How are you doing? Assalamu I'm alaikum, good. everyone. Alhamdulillah. Fahad, before we start, आप अपना introduction दो कि who are you and what do you do? I have spent a lot of my professional life in Pakistan Navy, which I joined back in '96. Then I took my commission and served there as a weapons engineer, and took my retirement in 2012 and started my technology company, E4T, which is based out of San Jose, California, and Karachi. Um, and San Jose being the supposedly Silicon Valley of the world, it comes handy to gain some insights in the technology industry. So that is my bread and butter that I do, and now we have started Emerge. We have started Emerge with the idea that has been in my mind for long. And here we are doing the first live show together, which we had been planning for quite some time now. It's been 5-6 years जब से मैं पनाश को हमने लॉन्च किया था और सक्सेसफुली रन कर रही हूँ. तो ऑल दीज इयर्स मुझे एक जो रिक्वेस्ट है या एक सजेशन बहुत ज़्यादा लोग दिया करते थे, वो ये कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन वुमेन, व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर बोथ द जेंडर्स. कि हम अगर एक और चीज़ मैंने फील की कि हमने पिछले कई सालों में जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट में हमने इतना ज़्यादा काम कर लिया है कि देयर इज़ अ डिसबैलेंस इन सोसाइटी. एक इम्बैलेंस आ गया. ख़वातीन know their right, they're empowered, they're more knowledgeable, और on the other hand आदमियों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स मैसर नहीं हैं. In general, we do not have such platforms जहाँ पे हम knowledge share करें या empower करें, क्योंकि empowerment shouldn't be only for a woman. It should for all genders, everyone equally. Also, जैसे पनाश का था, connect, educate and empower. So I feel के same applies for men also. Same goes for men. अगर कोई आप connect होते हैं, जैसे एक बहुत मशहूर कहावत है कि your network is your net worth. The kind of people you know, जैसी कंपनी आपकी होती है, आपकी अपनी वर्थ में उसी तरह इजाफा होता है. So it was a query. A lot of people were approaching me कि आप do something for men also. तो and since we are working on a project together, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि this is the right time. We can launch a platform जो कि दोनों genders के लिए equally काम करता हो. So Fahad, what was your big idea when you were thinking about Emerge to launch it? ये शुरू करने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जर्नी तभी शुरू हो जाती है जब आप इस दुनिया में आंख खोलते हैं एज एन इंडिविजुअल बीइंग. So I can go back as far as when I was 4, 5, 6 years old. We learn from our surroundings when we are just a baby, a child, and then we started learning things from our parents. वो हमें तरबियत देते हैं, तालीम दिलवाते हैं. We go to school, फिर colleges जाते हैं, फिर हम जो knowledge gain करते हैं उसके against हम कोई profession join करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें मनी मिलती है, रुपए मिलते हैं, जिसको हम खर्च करके मजीद अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए काम करते हैं. लेकिन दिस जर्नी गोज ऑन. तो आई थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. और एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर तो इतना टाइम नहीं स्पैन मिलता आपको, टाइम पीरियड के यू कैन मेक कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. हाँ, लेकिन अगर हम इसी को अपनी ह्यूमन हिस्ट्री को उठा के देखें तो
जब से हमने आग जलाना सीखा और तब से लेके अब तक, तो the only thing that is changing in us and increasing with every passing moment, and that is knowledge, the level of knowledge that we have. As it is said, every living being coordinates a point of view. So this is what we do. We make point of views about things around us, और हम अपनी जिंदगी जीते हैं और अपनी नॉलेज ट्रांसफर करते हैं थ्रू आवर डीएनए इनटू आवर चिल्ड्रन, और तरबियत के जरिए भी, जो कि पहले स्टोरीज की सूरत में होता था हाथ बाय हाथ, फिर जब हमने प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू की तो किताबों की सूरत में, और अब जब कि हम इस नहज पे पहुंच गए इंटरनेट की वजह से कि अब हमारे जेब के अंदर पूरी दुनिया की नॉलेज है। तो यस, इस बात की बड़ी अहमियत मुझे लगी कि जितनी भी तरीके का नॉलेज टाइप मौजूद है, उसको हम सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि दिस इज व्हाट नेचर इज आस्किंग अस टू डू, एंड passively or proactively we have to go through the cycle. So why not do it proactively and understand it, and which will serve us better as individuals, infradi तौर पे और group की सूरत में, और then in terms of a larger group which is the society. तो और आजकल के दिनों में इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जिस नहज पे हम पहुंचे हुए हैं अपनी नॉलेज के लेवल के ऊपर, that could be detrimental towards either, or it could lead us to new heights as one being. So yes, इस वजह से शुरू करने का सोचा और इसको अमल में लाया। अच्छा, एक चीज व्हाट आई फील कि हमारे पास अदबी हलकों की भी बहुत कमी है। मतलब देयर शुड नॉट ओनली इमर्ज, देयर शुड बी मोर प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस जहाँ पे लोग बैठ के विदाउट बीइंग जज्ड अपनी बात कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो, एक दूसरे की बात सुनने की बर्दाश्त रखते हो। तो मुकालमे की जरूरत है हमारी सोसाइटी में, हमारे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कमी है। एग्जैक्टली, और हमें बहुत ज्यादा सिर्फ इंटेलेक्ट को ग्रूम करने की बहुत जरूरत है। ये जो हमारे इर्द गिर्द एक केओस है, और आजकल तो सैडली हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की जान लेना भी इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोगों के लाइक माइंडेड लोग एक साथ आएं और लोगों को इनकरेज करें टू कम टू द प्लेटफॉर्म। आपने सही बात की कि असल में जो मुकालमा है उसको भी हमने प्रमोट करना है, क्योंकि उसी से जो है वो हमें कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक्सक्यूज मी, जो कि हम आगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए जो अभी ये कि हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा ये डिवाइड करना चाहूँ जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर इंटेंडिंग टू डू, कि जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है वो 4 तरीकों की मौजूद है। एक वो है जो कि हम अपनी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दैट इज हिस्ट्री, और फिर है जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं दुनिया में और जिंदगी के दौरान। फिर साइंस की नॉलेज है, उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके फैक्ट्स हैं, और फिर डिवाइन नॉलेज है जो कि हमें रिलीजन की सूरत में मिलती है। तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर कैओस जो है, जो काउंटर प्रोडक्टिव चीज है, वो है द गैप बिटवीन these knowledge verticals, and we intend to bridge that gap and promote an understanding, because अगर इंटेंट सही हो और हम सही तरीके से इन चीजों को समझना चाहें तो there is no way that we won't be able to, और इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म हम साथ चाहेंगे कि वो this won't be a one way traffic, it will be mutual, because everyone who would be joining us, they will be contributing towards the cause of this knowledge system and journey. Having said that, जो हमारा अगला आने वाले projects हैं वो इन्हीं lines पर base करते हैं। For example, the first project that we are doing, उसके अंदर जो है वो youth का project है। I think youth are our future and they are the strength that we have today with us. तो एक प्रोजेक्ट उनके लिए, and then we are making series of documentaries about the topics which are intriguing, which are asked by ourselves, but we
sometimes fail to understand those questions or give just the surface answers. तो एक तो we'll have this networking events जो कि हमारा dialogue से भी मतलब जिसमें हम लोगों को भी engage करेंगे और we'll have inshallah good speakers and all. The other जो component है that is the different projects that we are doing for the betterment of society जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे जिसमें अभी आपने बात की कि वी बी टारगेटिंग यूथ जिसका एक यूथ प्रोग्राम बड़ा वी आर अबाउट टू लॉन्च इट इन अ मंथ और कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह देन देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद हैं देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड देन द थर्ड थिंग इज डॉक्यूमेंट्रीज ऑनलाइन इस तरह की चीजें जो कि देन देयर इज अ सीरीज जो हम इंशाल्लाह वेरी सून देखेंगे दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव्स Everyone has their own perspective. हमारा झगड़ा शुरू ही इसीलिए होता है कि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव को मानने और समझने से इनकार कर देते हैं। Absolutely. आप कोई चीज देख रहे हैं उस तरह वो मुझे नजर नहीं आती तो वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट और उस कॉन्फ्लिक्ट को यूजुअली हम अपनी ईगो की जंग बना लेते हैं। तो for that we have lined a few guests and inshallah whoever wants to be part of it they can contact us. Just so this platform is three types of people. एक तो the people who are positive thinkers or at least who think, who do not just sit idle and mind. Yeah, who have a little bit of exploration in their brains. Yeah, the people who are using the brain cells, who like to think, explore, and reflect. And there's another influencers. Influencers can be influencer can be anyone जो एक certain group of people को influence कर सकता हो. They can be teachers हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो अपनी अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी के लीडर्स हो सकते हैं. सो दैट इफ दे विल जैसे इससे फायदा ये होता है कि अगर वो एक तो वो हमारे भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे हमारे डायलॉग में, हमारे इवेंट्स में, हमारी प्रोजेक्ट्स में, और दे विल बी हैविंग सम टेक अवे आल्सो दैट दे कैन हाँ तो इसमें अपनी मैं अगर इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि देखें इन्फ्लुएंसर्स तो इफ वी आर लिविंग अ फैमिली लाइफ, if we are not living alone, if we are living with a family that is the basic unit of the society, तो we are the influencers. आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप बहन हैं, भाई हैं, जो भी आपका रिश्ता है, अगर आप एक फैमिली की सूरत में रहते हैं और अगर आपके दोस्त हैं जो आपसे बात करते हैं और आपकी बात समझते हैं और वाइस वर्सा, तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं. और इन सब के साथ अगर आप ये समझते हैं कि you should explore and take it head on whatever is coming, whatever future has to offer, so they should join us, become part of it, because together we will make it rather in a best manner possible. Yes, all right. So thank you so much, Fahad. आप में से our website will be up and running soon. Yeah, soon. And there is a registration link. आप मेरे ख्याल से आजकल में I'll be sharing the link. If anybody wants to be part of it, they can sign up and become a member. Also, and for now, they should like our page to have all the updates coming in from us. Yeah. Also, if you think you have a certain perspective for anything, you can contact us so we can take you live on our video series that is called Perspectives. और जैसे इंशाल्लाह लॉकडाउन एंड होता है और ये पैंडेमिक की सूरत हाल बेहतर होती है तो फिर हमारे मेरा ख्याल है माविश के वो खत्म तो हो गया, लेकिन अभी तक जो हमारा इंटरनल थॉट प्रोसेस था वो अभी तक आजाद नहीं हुआ है, वो अभी तक काबू में ही है इस फियर के. तो उस जब हमारा फियर भी एंड हो जाएगा, नहीं इट्स ऑफ कोर्स इट्स स्टिल हियर, वी प्रे कि ये जल्दी सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह सारे जो हमारे प्लान्स हैं उनके हम अमली जामा पहना पाएंगे. बिल्कुल, बेशक. Okay, thank you everyone for joining in and for watching this broadcast, or we'll see you all very very soon with some really insightful and कोई बहुत अच्छे गेस्ट के साथ या maybe documentary. Pray for us also कि हमारे ये वेंचर कामयाब हो, and thank you and Allah Hafiz from my side. Fahad? Thank you everyone. बहुत शुक्रिया. और जितने हम एक्साइटेड हैं, आई बिलीव कि जब आप हमें ज्वाइन करें और हमारे कंटेंट से इंटरेक्ट करें और हम जो करना चाहते हैं उसका पार्ट बने, तो आप भी उतने ही एक्साइटेड हो जितने हम हैं. और बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमारा पहला ब्रॉडकास्ट था और इसका पार्ट बनने का बहुत शुक्रिया.
Have a good weekend. Khuda Hafiz.